Welcome in learning maths in easy way. Going to start chapter number 3, coordinate geometry of class 9. So first of all I will explain here the axes. कि what are the axes? Axes होती क्या है? ठीक है, there are two types of axes. The first one is horizontal axis and I will explain further कि what is the name of this horizontal axis. ये एक horizontal axis होती है named as x and x dash. On the middle we locate here 0. On the left side there are negative integers -1, -2, -3, -4 up to infinite having equal space, and the same on the right side there are positive integers having equal space and so on. Okay, and this axis is known as x dash. X हम इसे लिखते हैं and it is called as x axis. Clear? Now the second one is vertical axis. Now the what is vertical axis? Vertical line जैसे होती है same as we have to draw here vertical axis. It is y and y dash. Middle point we will locate here 0 on the above of 0. ये मानिए कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है. इसके above वाला we have to locate here positive integer having equal space up to so on, and below the 0 के नीचे we place here negative integers are there having equal space -5, -6 up to so on. This vertical axis is called y axis and it is written as y dash y. Okay, so there are two axes, horizontal axis x dash x called x axis, vertical axis is y dash y called y axis. Now the next topic is coordinate axis. अभी तक तो हमने पढ़ा था दो एक्सिस, x axis और y axis. Now what is coordinate axis? On a graph when there two axes intersect at a point, जब ये दोनों एक्सिस हमारी x और x dash here y और y dash when they mutually perpendicular कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पर perpendicular होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि when they intersect each other at one point, this point is called origin. This is called origin, ठीक है. And these two lines are called coordinate axis. अभी हमारा क्या बन गया है? Coordinate axis, and origin को we will represent here by O. Okay, so there are two axes now, x dash O x, y dash O y. Same as here we will place here positive integers and here negative, like that. Having equal space in each integer and so on. So now this system on a graph paper जब ये बनता है तो it is called the coordinate axis. Now these coordinate axes will drawn on the graph paper. So the paper जो plane होता है, the paper plane of the paper containing both axes is called Cartesian plane, and this system is called the Cartesian system. क्या बोलते हैं हम इसे? Cartesian system. ठीक है. That means in this system we have to locate some point on this paper, और हमें क्या होता है कि ग्राफ दिया होता है, we have to read the points. हमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि we have to locate the point on the graph, and जब हमें ग्राफ बना हुआ देते हैं तो we have to read the points here. Now the ordered pair. What is ordered pair? Ordered pair होता है a pair of two numbers a and b. ये क्या होता है? एक पेयर होता है टू नंबर्स का a and b such that कि जो हमारा a होता है ये हमेशा फर्स्ट प्लेस पर ही आएगा. ओके, एंड b is always be at second place. A is called as abscissa
and B is called ordinate. Okay, and abscissa and ordinate of a point, ये एब्सिसा और ये मिलकर ऑर्डिनेट जो ये पॉइंट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट. समझे? दैट मीन्स जो ए एंड बी है, इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर, इट इज अ पेयर ऑफ टू नंबर्स ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्डर के ए हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आएगा, बी सेकेंड प्लेस पर आएगा. So A is called abscissa, B is called ordinate, and this combination of a pair is called coordinate. So हमें क्या करना होता है? We have to locate some points on the Cartesian plane. Now come to the topic location of a point. कि हम एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, लोकेशन उसकी क्या होती है. So before this I will explain here something कि हम इसमें देखते हैं. इट इज कॉल्ड, ये हमें क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज हमें लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज. इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में आपको लेना है, यू कांट चेंज इट. इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अब हमें देखना है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट. ओके, क्या बोलता है? क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में क्या हो गया? फर्स्ट में इट इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है. सो जो दोनों नंबर होंगे बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, ऐसे ही. नाउ कम टू द सेकेंड. हियर एक्स पहले आता है, अभी मैंने आई एक्सप्लेन अर्लियर ऑर्डर्ड पेयर. एक्स एक्सिस को पहले रीड करेंगे, इट इज नेगेटिव नंबर लाइन, नेगेटिव एक्सिस है ये. सो नंबर माइनस पहले आता है एंड इट इज पॉजिटिव. सो हियर इज पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस एंड द वाई एक्सिस इज ऑल्सो माइनस. सो बोथ नंबर शुड बी ऑफ नेगेटिव. ओके, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट वी विल रीड एक्स एक्सिस हियर पॉजिटिव प्लस और माइनस. ये बहुत जरूरी है याद रखना कि जो भी नंबर आता है पॉजिटिव दो, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेट हम एग्जाम्पल लेते हैं. इफ आई राइट हियर 3 and 5, बोथ आर पॉजिटिव. तो बोथ आर पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोकेट होगा. नाउ ऐसे ही हमारे पास सेम नंबर है -3 -5, बोथ आर नेगेटिव, तो दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट कि इट विल बी इन द third quadrant. So by this method we can locate any point in this system. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ यू हैव टू प्लॉट हियर कि -3 and 2 हमारे पास कोई नंबर है, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस इज नेगेटिव एंड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव. सो दिस विल बी क्लियर कि दिस पॉइंट लोकेट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. Okay, and the same as here, if I write 2 and -3, it is positive, it is negative, so it will lie in the fourth quadrant. Okay, now the example of this, plot the following points: A -3 0, B 4 2, C 2 4, D -2 -3, E -3 -2, F 7 or -1. So first we will locate A -3 0. A -3 0 का क्या मतलब है, पहले तो इसे समझिए. A -3 0, that means it is on the x axis, so we have to take it here on the negative x axis. It will be -3 and y is 0, that means distance तो कुछ हुई नहीं है ऊपर, तो this point will be E. ओके, इट इज -3 और x एक्सिस पर y की वैल्यू तो मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर जाएगा, लेकिन वो तो 0 है, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज A. नाउ B is 4 2. B is 4 2, both are positive. It will locate in the first quadrant. It is 4 and it is 2. हम क्या करते हैं, इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड दिस पॉइंट विल बी B 4 2. ओके, C is 2 4. नाउ x एक्सिस पे 2 और y is 4, so it will be like that. It is C 2 4. इसको भी मैं ज्वाइन करके दिखा देती हूँ. ठीक है, नाउ
D is -2 means both are negative. तो both are negative हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. We have to read -2 on the x-axis. -2 is here and -3 on the y-axis. So we have to draw a line like that. हमको इस टाइप से लाइन ज्वाइन करनी होती है. सेम एज E, ये पॉइंट हो गया हमारा D, -2 -3 and now E -3 -2. That means on the x-axis we have to read here -3 and here -2 like that. It will be E -3 -2. Now F is 7 or -1. 7 और -1 means F 7 मतलब है on the x-axis positive and -1 on the negative y-axis. तो ये 7 और ये -1. So we will locate it here F7 -1. You can draw these points very neatly on the graph paper. So by this way we can locate the points. Now come to the reflection. What is the reflection? Reflection हमारा होता है दो तरीके से. On x-axis means along x-axis और along y-axis. ओके, अब इसके अकॉर्डिंगली हमें इसको रीड करना आना चाहिए. कैसे होता है कि इफ द वन पॉइंट इज गिवन हियर, एक कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, इट इज 4 और 3. ठीक है, अब इसका मिरर हमें मतलब इसका रिफ्लेक्शन हमको ड्रॉ करना है अलोंग एक्स एक्सिस. पहले हम समझते हैं अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि जब ये पॉइंट है दिस, तो ये जो लाइन है नाउ दिस इज लाइक अ मिरर. ये मिरर हो गया और इसका इमेज यहाँ पर बनना है अलोंग एक्स एक्सिस. तो हमें क्या देखना होता है कि ये 4 तो है, नीचे इसी डिस्टेंस पे जाएगा, लेकिन वी हैव टू रीड दिस डिस्टेंस. इट इज 1 2 3. तो हमें यहीं पर -1 -2 -3 हमें इस पॉइंट पर ये पॉइंट लेना होता है. दैट इज इट विल बी 4 एज इट इज और ये y एक्सिस का नंबर माइनस हो जाता है. मतलब जितना ये पॉजिटिव था 0 से जो डिस्टेंस थी इट विल बी ऑफ द नेगेटिव साइन. ओके, और ऐसे ही इफ इट इज अलोंग विथ y एक्सिस. अब ये हमें y एक्सिस के अलोंग लेना है, तो y एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि नाउ इट इज अ मिरर लाइन. ये हमारी मिरर है और इसका यहाँ पर मिरर व्यू बनना है. मिरर व्यू का मतलब होता है कि जो जितनी डिस्टेंस पे मिरर से यहाँ पर है उतने ही डिस्टेंस पे वो इधर आएगा. दिस डिस्टेंस इज व्हाट 4. 0 से ये पॉइंट 4 पर है, तो हम लेंगे 0 से -4 पर. ओके, एंड द 3 विल बी सेम एज हियर, तो दिस पॉइंट विल बी हियर -4 और 3. तो दैट मीन्स क्या है कि जब हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं तो y का साइन चेंज हो जाता है, और इफ यू टेक द अलोंग y एक्सिस तो x का साइन माइनस हो जाता है. तो दैट मीन्स अपोजिट काम करता है. ये हमें कुछ याद भी रखना है और वैसे कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर है कि आपको जब अलोंग एक्स एक्सिस करना है तो यू हैव टू पॉइंट द मार्क हियर कि उसमें आप y जो है ऑर्डिनेट जो है उसे माइनस साइन कर देते हैं. और एज इट इज कि जब हमारा अलोंग y एक्सिस है तो x एक्सिस के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बाय दिस वे यू कैन लोकेट द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी गिवन पॉइंट. The concept of this video are clear to you. So like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.